Transportation model. That's the topic that we are going to start today. Now remember, transportation model was initially developed by F.L. Hitchcock, then it was revised by T.C. Coupons and further by Danzig. So these were the main contributors of transportation model, and the objective is to minimize the transportation costs, right? The objective will be to minimize the transportation costs, and that you can do in two phases. Remember, there are two phases. The first one is called as initial optimum transportation cost, right? First phase in transportation model is termed as initial phase, and thereby we calculate the initial optimum transportation cost. That can be calculated using north-west corner method, number 2 by least cost method, and number 3 by Vogel's approximation method, right? Take down the full form, VAM, which stands for Vogel's approximation method. So these are the three models through which you can calculate the initial optimum transportation cost. And then after applying the first phase, we need to apply the second phase also. That says that you have to calculate the total minimum transportation cost, and you can calculate it by using stepping stone method and by modified distribution, right? That's UV method, modified distribution. So remember, whenever a problem in transportation is given, it has to be solved in two phases. The first phase is called as initial optimum transportation cost, and the second phase is called as total minimum transportation cost. So जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, you will have to apply both these phases. First of all, we have to find out the initial answer, and then later on in the second phase we need to revise it. फिर आपको revise करना पड़ेगा और एक optimum solution निकालना पड़ेगा, जो कि निकाल सकते हैं आप stepping stone से या फिर मोदी मेथड से। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट बेसिक मॉडल, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर द ऑपरेशन ऑफ दिस होल मॉडल, right? Now remember, in this particular model there are 3 factories, right? The factories could be more also, they could be 5, 6, 7, but we have taken up a basic problem जहां पर हमारे पास 3 फैक्ट्री हैं और warehouses 4 हैं। Remember, warehouses are those places where you stock goods. कोई भी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद सीधा कस्टमर्स के पास नहीं जाता है, राइट? प्रोडक्शन हाउसेस से, आई मीन प्लांट से पहले वो warehouses में जाता है, जहां पर इंस्पेक्शन और प्रोसेसिंग होने के बाद it is passed on to wholesalers, retailers and ultimately to the customers. So remember, warehouses refers to those places where you stock goods. ये वो places हैं जहां पर आप goods को store करते हैं, और यहाँ पर फैक्ट्री 1 से warehouse 1 तक एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है 13 रुपीज। F1 से W2 मतलब फैक्ट्री 1 से सेकंड वेयरहाउस तक एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट है 11 रुपीज। F1 से W3 it is 15 rupees and so on. So all these values are representing cost per unit, right? Transportation cost per unit from a factory to the respective warehouse. क्योंकि स्टूडेंट्स सॉल्व तो कर देते हैं, but they don't exactly know what are they solving. So remember, before solving it, you must know all these kinds of basics कि यहाँ पर values represent कर रही है आपको cost per units. Then demand and supplies, they are representing units, they are representing quantities. Factory 1 supply कर रही है 2 units को, Factory 2 manufacture करके supply कर रही है 6 units, Factory 3
सप्लाई कर रही है 7 यूनिट्स, और डिमांड वेयर हाउस 1 की डिमांड है 3 यूनिट्स, सेकंड की 3, थर्ड की 4 एंड फोर्थ की 5 यूनिट्स. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? You have to transport these 15 units manufactured by the 3 factories to all these 4 warehouses in such a manner so that their demands are satisfied and the transportation cost comes out to be minimum. क्या करना है आपको? छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि ये 15 यूनिट्स जो तीनों फैक्ट्री टोटल बना रही हैं, मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रही हैं, ये आपको इन चारों वेयरहाउसेस तक इस तरह से ट्रांसपोर्ट करनी है कि इन चारों वेयरहाउसेस की जो जो रिस्पेक्टिव डिमांड है, ये सारी डिमांड सेटिस्फाई हो जाए और आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी मिनिमम आए. दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस मॉडल. यू हैव टू ट्रांसपोर्ट द टोटल यूनिट्स. हियर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 15, so you have to transport these 15 units to all these 4 warehouses in such a manner so that their respective demands are satisfied and the transportation cost comes out to be minimum. Right? अब करना कैसे है? We are going to start with the first one, that is north-west corner method. Now, as the name is representing, this method is based on directions. ये पूरा की पूरा method based है directions के ऊपर. अब directions तो clear होंगे आप सभी को, right? Topmost is north direction. Right, you put a map of India on this compass. तो यहाँ पर सबसे टॉप पर तो है जम्मू कश्मीर, right? Downwards it is south, जहाँ पे तमिलनाडु, केरला आ जाता है. This is west direction, जहाँ पर गुजरात और राजस्थान की वेस्ट साइड्स आ जाती हैं. और ये वाली डायरेक्शन है ईस्ट, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, all these eastern states, you know, they lie. So if we are putting a map of India, north का मतलब होता है टॉप मोस्ट, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, और वेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट? द वे यू आर ऑल सिटिंग. नॉर्थ का मतलब है टॉप मोस्ट, वेस्ट इज ऑन योर एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट? इफ यू आर जस्ट सिटिंग इन दैट मैनर, तो आपको पूरे टेबल में वो वाला कॉस्ट सेल सेलेक्ट करना है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर डायरेक्शन पर लाई कर रहा होगा. रिमेंबर, ऑन द टॉप मोस्ट डायरेक्शन एज वेल एज द कॉर्नर ऑफ वेस्ट. सो प्लीज लुक एट दिस टेबल एंड यू कैन वेरी वेल जज लुकिंग एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, द एक्सट्रीम वेस्ट एंड एक्सट्रीम नॉर्थ. जो पहला सेल होता है हमेशा वो ही होता है उस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा. रिमेंबर, द फर्स्ट एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट सेल, यहाँ पर पहला सेल, यहाँ से तो वेरिएबल्स आ रहे हैं और यहाँ पर वेयरहाउसेस आ रहे हैं, तो जो एक्चुअली पहला कॉस्ट सेल होता है वो ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल कहा जाता है. एंड यू कैन वेरी वेल जज द लॉजिक ऑल्सो. दिस इज एक्सट्रीम नॉर्थ, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है ये, और वेस्ट वाइज भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर डायरेक्शन पे लाई कर रहा है. तो हमें वो कॉस्ट सेल लेना है जो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर डायरेक्शन पर लाई कर रहा होगा. इन शॉर्ट, जो भी टेबल का पहला कॉस्ट सेल होता है हमेशा वही होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, द फर्स्ट सेल, राइट? जो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर पे लाई कर रहा है, राइट? लुकिंग एट दिस जंक्चर, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज एक्सट्रीम वेस्ट. तो जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे लाई कर रहा होगा वही सेल पहले सेलेक्ट हो जाएगा, और इन शॉर्ट जो भी टेबल का पहला सेल होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा. वहां पर आप एलोकेशन के लिए एक स्पेस बनाएंगे, राइट? उस सेल के सामने देखिएगा सप्लाई कितनी है, और उसी सेल के नीचे देखिएगा डिमांड कितनी है. सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी मिनिमम होगा उसको आप उस सेल के अंदर एलोकेट कर देंगे. तो सामने 2 और नीचे 3, दोनों में से मिनिमम कितना है? 2. तो आप 2 यहाँ पर अलॉट कर देंगे. उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि फैक्ट्री 1 की मैक्सिमम सप्लाई 2 यूनिट्स है, उससे ज्यादा वो सप्लाई कर ही नहीं सकती है. तो आप ये एक बेसिक रूल याद रखिएगा कि जो भी सेल सेलेक्ट हुआ है उसके सामने वाली सप्लाई और उसके नीचे वाली डिमांड में से जो भी मिनिमम होगा उसको आप सीधा सीधा अलॉट कर दीजिएगा. तो यहाँ पर इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर सप्लाई थी 2 और डिमांड थी 8, राइट? तो सामने 2 और नीचे 3, दोनों में से मिनिमम कितना हुआ? 2 यूनिट्स.
उसको हमने यहाँ पर अलॉट कर दिया। नाउ सी, अब इस 2 को अलॉट करने के बाद दिस अमाउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ सप्लाई एज वेल एज डिमांड। इस अमाउंट को आप इसके सामने वाली सप्लाई से रिड्यूस कर देंगे और इसी के नीचे वाली डिमांड से भी रिड्यूस किया जाएगा। तो 3 में से 2 गया, कितना रह जाएगा हमारे पास 1, राइट। रिमेंबर दिस वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ सप्लाई एज वेल एज डिमांड। तो इस 2 को सप्लाई 2 में से माइनस किया, 0 रह गया और 3 में से 2 गया तो हमारे पास 1 आ गया। अब सप्लाई 0 ही है, सो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और डॉटेड लाइन यू हैव टू डिलीट द एंटायर रो। अगर सप्लाई 0 होगा पूरी की पूरी रो को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन केस इफ द डिमांड टर्न्स 0 द होल कॉलम विल बी डिलीटेड। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? रिमेंबर फैक्ट्री 1 सप्लाई कर रही थी 2 यूनिट्स, जो उसने वेयरहाउस 1 को ट्रांसपोर्ट कर दी, राइट, 13 रुपीस पर यूनिट की कॉस्ट से। तो इसकी सारी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई है। इट कैन नॉट सप्लाई एनी फर्दर, राइट। वो फर्दर 1 यूनिट और सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं है। That's why this factory has become redundant, it has become useless। तो आपको इसको अपनी लिस्ट से हटाना पड़ेगा और इसको एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। So you can do it by dotted line or you can do it by pencil. So we have to delete the first row because the supply has turned to 0। तो जितना आपने अलॉट किया उसको सप्लाई और उसके नीचे वाली डिमांड में से रिड्यूस करिएगा। ये ध्यान रखते हुए कि अगर सप्लाई 0 होगी द एंटायर रो विल बी डिलीटेड। इफ इन केस द डिमांड टर्न 0 द एंटायर कॉलम विल बी डिलीटेड, राइट। नेक्स्ट, नाउ सी दिस होल रो इज गॉन, दिस रो इज डिलीटेड। अब आपको फिर से एक नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सर्च करना है। सो व्हाट इज द न्यू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर? नाउ दैट विल बी 17। जो पूरी फर्स्ट रो डिलीट हो गई उसको हटाकर अब जो बचा हुआ टेबल है उसमें फिर से एक नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है और वो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? 17, राइट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो मतलब जो रो डिलीट हो जाएगी उसको हटा के जो बचा हुआ टेबल है, रिमेनिंग टेबल है, उसमें से फिर से आपको एक नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सर्च करना है। और यहाँ पर नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? 17, राइट। लुकिंग एट दिस जंक्चर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। नॉर्थ मतलब टॉप मोस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में देखना है आपको। और जो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे वैल्यू लाई कर रही होगी रिमेनिंग टेबल में से, जो कि है यहाँ पर 17, तो अब इस 17 को सेलेक्ट करना है हमें। अब इस 17 के सामने सप्लाई देखनी है जो कि है 6, 17 के नीचे डिमांड देखना है जो बचा हुआ था 1। तो सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप अलॉट कर देंगे। तो 17 के सामने 6, नीचे 1। व्हाट इज द मिनिमम? दैट इज 1। अब इस 1 में से 1 माइनस किया 0 आ जाएगा और 6 में से 1 माइनस किया दैट विल बी इक्वल टू 5, राइट। पहले तो आपने देखा सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से कितना मिनिमम था। तो सामने हमारे पास थी सप्लाई 6 और इस पर्टिकुलर सेल के नीचे कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड थी हमारे पास 1। तो 6 और 1 में से मिनिमम कितना हुआ? वो हो गया 1। अब इस 1 को माइनस किया तो 6 में से 1 गए 5 और 1 में से 1 गया तो बचा 0। अब यहाँ पर डिमांड 0 ही है। सो व्हाट वी विल डू? वी हैव टू डिलीट द एंटायर कॉलम। अब इस पर्टिकुलर वेयरहाउस 1 की डिमांड सेटिस्फाई हो गई है जो कि हो गई है हमारे पास 0। तो अब इस पूरे कॉलम को आपको डिलीट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट फर्दर सप्लाई एनी मोर यूनिट्स टू दिस वेयरहाउस बिकॉज इट्स डिमांड हैज टर्न्ड 0 नाउ। तो अगर आपका डिमांड 0 होगा द होल कॉलम विल बी एलिमिनेटेड और अगर सप्लाई 0 होगी द होल रो विल बी डिलीटेड, राइट। नेक्स्ट, अब आपको एक नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सर्च करना है, राइट। तो फर्स्ट रो डिलीट होने के बाद और फर्स्ट कॉलम डिलीट होने के बाद नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है आपको। और नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बताया था, जो भी टेबल का पहला सेल होगा वही होगा हमेशा उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रिमेनिंग टेबल का। तो वहां पर और वैसे भी जस्टिफाइंग दैट डायरेक्शंस आल्सो, दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट। नॉर्थ टॉप मोस्ट, जो किससे ज्यादा ऊंचाई पे आप जा नहीं सकते हैं। दिस रो हैज बीन डिलीटेड और फर्दर वेस्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि ये कॉलम भी डिलीट हो गया है। तो नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा आ गया? 14,
अब इस 14 के सामने सप्लाई देखी वो है 5 और नीचे डिमांड देखा वो है 3। तो सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी मिनिमम होगा वो अलॉट कर देंगे आप। तो सामने है 5, डिमांड है 3, दोनों में से मिनिमम कितना है 3। ये रूल याद रखिएगा, जो भी सेल सेलेक्ट होता जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई देखिएगा और उसी के ही बिलो डिमांड देखिएगा। जो भी दोनों में से मिनिमम होगा उसको अलॉट कर दीजिएगा और फिर उस अमाउंट को दोनों सप्लाई और डिमांड में से आप रिड्यूस कर दीजिएगा, राइट। तो 3 में से 3 गया, ये हो गया 0। 5 में से 3 गया, दिस इज 2। नाउ डिमांड 0 ही है, सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू टर्मिनेट द होल कॉलम। डिमांड 0 होते ही आपको ये वाला कॉलम भी डिलीट कर देना है, क्योंकि इस वेयरहाउस 2 की डिमांड थी 3 जो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई है। अब आपको इसको फर्दर कोई और यूनिट्स सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स डिमांड हैज बीन सेटिस्फाइड। तो दिस इज गॉन। नाउ वी आर लेफ्ट विद दीस 4 सेल्स ओनली। हमारे पास 4 कॉस्ट सेल रह गए, तो इन चारों में से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सर्च करना है। नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हो जाएगा, अब ये वाला 12, राइट। नॉर्थ फिर से आपको देखना है टॉप मोस्ट, और वेस्ट का मतलब है फर्दर एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट। और ये आपको शॉर्टकट की बात याद ही होगी कि जो भी बचा हुआ टेबल होगा उसमें से पहला कॉस्ट सेल जो होगा वही होगा उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट। तो अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखा, 12 के सामने 2, 12 के नीचे 4। सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी मिनिमम होगा वो अलॉट कर देंगे आप। तो सामने 2 और नीचे 4, मिनिमम कितना है यहाँ पर 2 यूनिट्स। नाउ दिस 2 विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ सप्लाई एज वेल एज डिमांड। इस 2 को दोनों जगह से आपको माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 2 गया तो 2 रह गया। सप्लाई 0 हुआ, तो अब आपको इस पूरी रो को भी एलिमिनेट कर देना है, राइट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। इन केस कोई भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं आप, राइट। देन यू कैन ऑलवेज नोट इट डाउन एट द एंड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इन दिस फ्लो, राइट। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विद दीस 2 कॉस्ट सेल्स ओनली। हमारे पास केवल ये 2 सेल रह गए। अब इन दोनों में से आपको फिर से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सर्च करना है। तो 15 और 12 में से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो पहले आ रहा है। और पहले कौन सा आ रहा है 15, ये एक्सट्रीम वेस्ट के अंदर है, राइट। 15 के सामने सप्लाई है 7 और 15 के नीचे डिमांड है 2। तो आपको देखना है सामने सप्लाई 7 और नीचे डिमांड है 2, तो 7 और 2 में से कितना अलॉट करेंगे आप, ऑब्वियसली जो भी दोनों में से मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना है यहाँ पर 2। अब इस 2 में से 2 को माइनस किया 0 और 7 में से 2 गया, ये हो जाएगा 5। इस 0 वाले कॉलम को भी टर्मिनेट कर दिया आपने, ये भी डिलीट हो गया। लास्ट में केवल एक ही सेल रह गया, कौन सा, ये 12। इस 12 के सामने सप्लाई है 5 और इस 12 के नीचे डिमांड है 5। तो लास्ट में जो सेल रह गया उसी को ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स द ओनली वन। तो अब आपका यही बनेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, बिकॉज़ दैट्स द ओनली वन लेफ्ट, सो यू हैव टू सेलेक्ट दैट कॉस्ट सेल ओनली। लेकिन रूल उसमें भी यही रहेगा कि सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी मिनिमम होगा उसको अलॉट कर देंगे। तो सामने भी 5 है और नीचे भी 5 है, दोनों में से मिनिमम कितना हो गया 5। नाउ दिस 5 विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ सप्लाई एज वेल डिमांड, तो ये दोनों वैल्यू 0 जाएंगी। At the end, the whole demand as well as supply will turn 0. आखिर तक पहुंचते पहुंचते सारी सप्लाई और डिमांड पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए, that should turn 0, right? The total 15 will remain intact, क्योंकि बता रहा था कि डिमांड और सप्लाई का टोटल दोनों साइड्स का है 15 यूनिट्स, तो 15 यूनिट्स will remain as it is. This was just telling कि 15 यूनिट हमें सप्लाई करनी थी इन चारों वेयर हाउसेस को, जो हमने कर दी, लेकिन किस कॉस्ट पर वो कैलकुलेट करके बताएंगे अब आप। IOTC, that stands for Initial Optimum Transportation Cost। तो Initial Optimum Transportation Cost कैसे आएगा, अब वो सीख लीजिएगा। जितना यूनिट जिस सेल पे अलॉट हुआ है
उसको उसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 13 पर हुआ है 2 यूनिट्स का, सो व्हाट डू वी डू, वी विल मल्टीप्लाई 13 बाय 2। नेक्स्ट, जहां पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ उनको नहीं कंसीडर करना है आपको। जिस कॉस्ट सेल पर जितना अलॉट हुआ है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 17 को 1 से, देन 14 को 3 से, फर्दर 12 को किया 2 से, उसके बाद 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इन वैल्यूज को लेकर मल्टीप्लाई किया आपने तो 13 2 सा 26, 17 1 सा 17, 14 3 सा 42, 12 2 सा 24, 15 2 सा 30 and 12 5 सा 60. Adding up all these values, पीछे का एड इनको एक बार, 60 plus 30 90, 90 और 24 will give you 114, 114 और 42 156, 163, 173, 179, 199 rupees will be the initial optimum transportation cost using north west corner method। तो ये हमारी कॉस्ट बन जाएगी इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। प्लीज टेक इट डाउन और अब जो प्रॉब्लम्स हो यू कैन आस्क इट वन बाय वन।